Hi, good evening, everyone. How are you all? I hope you are doing well and you have enjoyed your day today. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning chemistry here. And the topic is chemical reactions and equation. This is from class 10th. Okay, so this is part 2 of this chapter. Okay, so what we have discussed in our previous class, so we have just discussed about the introduction of chemical reaction and equation, and we have learned about the conditions, and we have also learned about the characteristic of the chemical reactions and chemical reactions. Okay, so this is what we have learned. Now in this class we are going to learn about the chemical reaction in our daily life, and then we will discuss that how we can write down the chemical equations. Okay, and after that we will discuss about the law of conservation of mass, and then balanced and unbalanced chemical equation, and then at end we will discuss about the how we can balancing the we can learn about the balancing of chemical equation. Okay, so let us start with the chemical reaction in our daily life. So let us start with that. So yes, what is chemical reaction in okay, so we have learned when two or more substance convert into the new substance, okay, you form new substance, so that is chemical reaction. So chemical reaction in our daily life, so we are going to take some example of chemical reaction in our daily life. Okay, so the first one is what, so let me change the color of pen and then we will discuss. Okay, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्या होगा, अपने डेली लाइफ में हम क्या फेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन फेस करते हैं, कौन कौन सा। सो फर्स्ट क्या होगा, हमें जो फूड डाइजेशन होता है अपने स्टमक में, जो फूड की डाइजेशन की प्रोसीजर होती है, कब से स्टार्ट होती है, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं। ओके, व्हेन एवर वी विल इनटेक द फूड, द डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड। ओके, so what happened, that is also a chemical change. Okay, that is also a chemical reaction. So here I'm writing digestion of food, in which complex substance convert into the simpler for substance, okay, which we can easily digest. जो complex substance होते हैं वो simpler substance में convert होते हैं, जिसे हम क्या कर सके, easily हमारा body digest कर सके. Okay, then the another example in our daily life is respiration. Okay, so during respiration also some chemical reaction take place. Okay, where we during the respiration our body get energy. Okay, body को energy मिलती है. Then the third thing, okay, so third one is the rusting of iron. We can see a brown layer formed on the surface of iron when it kept in open places. क्या होता है, किस आयरन की कोई भी चीज जो बहुत लंबे टाइम तक ओपन एरिया में रखा रहता है, हम क्या देखते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाता है जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर रोस्टिंग ऑफ iron. Okay, the next one is the formation of curd. So that is also our daily life example. ये भी daily life में हम देखते हैं, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ, also many more example we can take, we can take the cooking of food. Okay, we can take the what photosynthesis in plants. So these are some more example of the chemical reaction. Okay, so now we are going to learn about how we can write down the chemical equation. कैसे लिखेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स दिस साइड, वी विल राइट डाउन द रिएक्टेंट. सपोज देयर आर टू रिएक्टेंट. ओके, दो रिएक्टेंट है, दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है, क्या होता है, कंबाइंड होता है, कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन होता है दोनों में और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. ठीक है, तो जो सब्सटेंस कंबाइंड होगा, जो रिएक्शन में पार्ट लेगा, लाइक ए और बी है,
ठीक है, ए और बी टू सब्सटेंस है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सब्सटेंस है, ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ए बी बना देते हैं, ए बी बना देते हैं। जो ए बी बनता है वो क्या होता है, जो पार्ट लेते हैं रिएक्शन में वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट। ए बी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमें लास्ट में न्यू फॉर्म्ड होता है सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ सब्सटेंस मोर देन टू भी हो सकते हैं, some in some cases single substance भी break होके, so we will learn about the type of chemical reaction, in that situation we will learn about that, okay। so क्या होगा, ये क्या होगा, reactant होगा, ठीक है, reactant react करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, टू रिएक्टेंट है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्लस साइन से, ठीक है। या फिर टू प्रोडक्ट है, सपोज ए बी की जगह पे ए बी प्लस सी बनता, अगर कोई सी भी होता यहाँ, तो फिर क्या होता है, ये इसके बीच में भी टू प्रोडक्ट या टू रिएक्टेंट के बीच में हम क्या साइन देंगे, वी विल पुट प्लस साइन इन बिटवीन टू रिएक्टेंट, और टू और थ्री रिएक्टेंट, और टू और थ्री प्रोडक्ट, ओके, or more than two product, okay, and then we will put down the arrow mark in between the reactant and product के बीच में हम क्या लिखेंगे, arrow mark लिखेंगे, ठीक है। so then what, wait, okay, so sorry, yes, तो क्या करेंगे, reactant and product के बीच में arrow marks। next important thing what we need to remember, and that is the state of the reactant and product का state। so here I'm writing state of the and product। so state से क्या मतलब है, state से अपना क्या मतलब है, state means कि reactant and product या तो वो solid form में हो सकता है, solid, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S से। लिक्विड है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से, ठीक है। गैस है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से, ठीक है। अगर एक्वस है, दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल है, तो उसको हम ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस है तो उसको हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, या सिंपली ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स। तो जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे ये इनमें से किसी स्टेट में होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, किसी फॉर्म में होंगे, ओके। सो वी विल रिप्रेजेंट, वी विल राइट डाउन, सपोज ए सॉलिड स्टेट में है और बी एक्वस में है, तो वी विल राइट डाउन सिंपली हियर लाइक दैट, ठीक है। और ए बी जो है वो लिक्विड है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम स्टेट लिखेंगे रिएक्शन का। तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जिससे हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट थिंग, एंड व्हाट इज दैट, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ओके। सो मास neither can be created or nor can be destroyed during the chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के टाइम ना मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये होगा कि मास एट रिएक्टेंट साइड
इज इक्वल टू मास एट प्रोडक्ट। ओके और हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड होगा वही नंबर ऑफ एटम किसके साइड होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो ये क्या होता है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम टेक प्लेस। क्या होगा, एटम का रीअरेंजमेंट होगा, मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मास जो रिएक्टेंट का होगा वही प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन है जो कि फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो केमिकल इक्वेशन which follow the law, law of conservation of mass, ऑफ मास, ठीक है। तो वो क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के साइड होगा वही नंबर ऑफ एटम कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट के साइड होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं Zn प्लस H2SO4 का, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके ZnSO4 प्लस H2, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम, जिंक का अगर नंबर ऑफ एटम, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन हियर एंड देन आई विल राइट डाउन दैट। जिंक का कितने एटम है, जिंक का ओनली वन जिंक एटम इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। अब ये तो हो गया रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की साइड हम काउंट करेंगे जिंक का कितना एटम है, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, जिंक वन ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट की साइड, 2 है, H2 है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन कितना है, ये प्रोडक्ट साइड है, यहाँ भी H2 है, दैट मीन्स हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर रिएक्टेंट की साइड कितना है, 1 है, ओके, एंड द नंबर ऑफ सल्फर एट प्रोडक्ट साइड इज 1, okay. Then oxygen, so number of oxygen is 4. Why 4? O4, O4, that means number of oxygen atom is 4, so we will write down 4 here, okay. And what about the प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में कितना है ऑक्सीजन का नंबर, यहाँ भी 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ एटम जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड है, सेम वही क्या है, प्रोडक्ट साइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम एट product side. Okay, so I hope it is clear to all of you what is balanced chemical equation. Now we are going to learn the unbalanced chemical equation. So the chemical equation, sorry, let me change the color of pen. So basically वो केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करता, वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ओके। सो द केमिकल इक्वेशन which do not follow the law of conservation of mass. That means the number of atom at reactant side will not equal to the number of atom at product side. Okay. तो वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल जैसे लेते हैं हम, H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन O2 से कंबाइन करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। यहाँ क्या देखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 कैसे, H2 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी 2 है, बट प्रोडक्ट साइड हम क्या देख रहे हैं,
हाइड्रोजन का नंबर जो 2 है, बट ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन एटम एक ही है, ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज हियर। तो क्या ये बैलेंस्ड है? ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स द मास एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, so yes, we are going to learn some new. Wait. So the third thing which we are going to learn, that is about the balancing of chemical equation. So how we can balance the chemical equation? If we have unbalanced chemical equation, तो उसको हम कैसे balance करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हमें पता है एटम का रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में मास क्या होता है? सेम होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो हमें उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द बैलेंसिंग एंड हाउ ऑल्सो द मेथड इज टेबुलर मेथड। ओके, टेबुलर मेथड है, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे? टेबल फॉर्म में इसको बैलेंस करेंगे। ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल। वी हैव Fe, दैट इज आयरन, ठीक है, और हाइड्रोजन। आयरन जब हाइड्रोजन सॉरी वाटर H2O से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? यहाँ पे आयरन 1 है, तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल बनाने के लिए, so let me change the color of pen first. Yes, हम क्या करेंगे? नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे पहले, एलिमेंट, ठीक है। फिर सेकेंड में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। हमने ये क्या क्या लिखा? हम अब क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके जितने एटम प्रेजेंट हैं लिखेंगे। फर्स्ट एटम क्या है? आयरन है, Fe है, हम Fe लिख देंगे आयरन। फिर क्या है? हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन लिख देंगे यहाँ। फिर क्या है? ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने एटम है? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 3 एटम है। हम क्या करेंगे? तीनों एटम का नाम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम, एटम एट रिएक्टेंट साइड कितने? फिर आयरन है यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड Fe का, Fe फर्स्ट टेबल में क्या है? Fe है, तो हम इसलिए पहले Fe का लिखेंगे दोनों साइड, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का लिखेंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड? 2 एटम है, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? इधर भी 2 है, तो हम हाइड्रोजन के नंबर 2 लिख देंगे। सॉरी, Fe का यहाँ 3 है, Fe3 है, तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, रिएक्टेंट साइड बस 1 ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन देख रहे हैं हम? ये 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या ऐड करेंगे इन सब के आगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए? मीन्स कि क्या ऐड करेंगे 3 आयरन में कि ये आयरन जो है 3 हो जाए रिएक्टेंट साइड में? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। इस 3 को हम क्या बोलेंगे? कोइफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोइफिशिएंट। We will call it coefficient. So we will add 3 before iron. Okay. So now we can count the number of iron here. कितना iron हो गया? अब 3 ऐड करने के बाद
we can multiply it by 3. So total number of iron is 3 now. So is it balanced now? देखो रिएक्टेंट साइड भी 3, प्रोडक्ट साइड भी 3, तो आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें किसे और बैलेंस करने की जरूरत है। ऑक्सीजन को, तो सिर्फ हम ऑक्सीजन के लिए कुछ, यहाँ हमें 4 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपली H2O के आगे में 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको 4 ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं 4 H2O के, तो ऑक्सीजन में तो 4 ऐड हुआ, बट यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी 4 ऐड हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 8 हाइड्रोजन एटम हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस नाउ। सो व्हाट वी विल डू हियर, so we will simply add 4 before this हाइड्रोजन 2। हम इस हाइड्रोजन के आगे में भी 4 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओके। सो इज इट बैलेंस्ड नाउ, वेट, क्या ये बैलेंस्ड है अब, okay, so I hope it is clear to you. So let us take some more example, we are going to take one another example here, okay. So we are going to take the example of magnesium react with oxygen to form मैग्नीशियम रिबन को, जब हम बर्न करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम वही एग्जांपल लेते हैं, दैट इज मैग्नीशियम रिबन, व्हेन वी बर्न इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म MgO, ओके, MgO एंड ऑक्सीजन दैट इज O2। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे पहले, ठीक है, टेबल फॉर्म करेंगे। सो नेम ऑफ एलिमेंट, ओके, number of atom at reactant side and number of atom at product side, ओके। हम क्या करेंगे, अगेन टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, इस टेबल में हम क्या करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है पहले उनका, तो पहला एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम, सो वी विल सिंपली राइट डाउन द नेम ऑफ मैग्नीशियम हियर। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है, ओनली 2 एटम प्रेजेंट है, किसके किसके, एक और मैग्नीशियम की और दूसरा किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, ओनली 2 एटम्स आर प्रेजेंट हियर। सो वी विल सी द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एट रिएक्टेंट साइड, कितना है मैग्नीशियम, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन, और फिर प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब हम ऑक्सीजन के एटम देखते हैं, सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट रिएक्टेंट साइड इज 2, and what about the number of oxygen as at product side, so that is only 1। so how we can balance the oxygen, कैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, so let me change the color of pen here and then we will see the example। so what we will do, we will simply add 2 before Mg, मैग्नीशियम के पहले अगर हम 2 that is कोएफिशिएंट ऐड करेंगे, what happened then, so we have 2 magnesium atom, we have 2 oxygen atom, okay, so now the oxygen is bal sorry, so we can find out that magnesium is 2, oxygen is 2, so what we need to add at product side हमें क्या ऐड करने की जरूरत है, so we will simply put 2 before magnesium oxide, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पहले हमें क्या करना होगा, 2 दैट इज कोएफिशिएंट 2 ऐड करना होगा। सो व्हेन वी विल add 2 before magnesium oxide,
What happened in that situation? 2. So overall magnesium and oxygen multiplied with 2. So now the number of atom at reactant side and now number of atom at product side are equal. So we can say the equation is balanced now. Chemical equation is balanced now. So this is the way by which we can balance the chemical equation. Okay, so this is all for today. In next class we will learn about the type of chemical reaction. Okay, so I hope everything is clear to all of you. So this is all for today. Bye everyone, take care, keep learning, keep smiling. Bye.